آج ہم آپ کو ایک قدیمی قبرستان جو یہاں مقامی آبادی سے پہلے کی ہے اور ایک قلعہ ہے جو قلعہ بھی مقامی آبادی سے پہلے کی ہے، یعنی 1000 2000 3000 سال یا اس سے بھی پرانی ہو سکتے ہیں۔ یہاں 3 قلعے ہیں، ان کا ہم نے اس قبرستان ہمارا آج اس ویڈیو میں قبرستان، قدیمی قبرستان اور قلعوں کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانی ہے، کیونکہ یہ جو قلعے ہیں، دونوں قلعے، ان کے دروازے جنوب کی طرف کھلتے ہیں، اور جو قبرستان کے چاروں طرف انہوں نے 4 دیواری دیا ہوا تھا پتھروں کا، اس کا بھی جنوب کی طرف دروازہ کھلتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ گجری قلعہ ہے، یہ سب سے اس کی جو قیمتی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اور اس کا کوئی راستہ نہیں تھا، ایک گھاٹی جس میں ایک گھوڑا، اونٹ یا 1 یا 2 آدمی اکٹھے اوپر آ سکتے تھے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے۔ اس لیے دور دور تک قلعے کے لوگ دیکھ سکتے تھے، اور نیچے والا جو قلعہ تھا میدانی علاقے کا، وہ بھی ان کو یہاں سے نظر آتا تھا، یعنی ان کو کسی قسم کا اگر کوئی خطرہ ہوتا تو وہ دور سے دیکھ لیتے تھے، اور قلعے تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، ایک راستہ تھا، اور اس راستے پر کوئی بھی آتا یہ اس کو قابو پا لیتے تھے۔ بہرحال یہ بہت دلچسپ تاریخی اور زبردست ہم آپ کو وزٹ کرا رہے ہیں کوہ سلیمان کا۔ یہ ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری سے ہم BMP پوسٹ سے آگے اسی روڈ پہ آ رہے ہیں، آگے کھت قبرستان ہے، اس کے ساتھ گجری قلعہ ہے، اور نیچے میدانی علاقے میں قلعہ ہے، وہ کوٹ گجری کہلاتا ہے۔ ان تینوں کا آپ کو مختلف کتابوں میں ذکر ملے گا، چیٹ GPT پہ، گوگل پہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں معلومات ملیں گے، مگر ان پر مکمل تحقیق نہیں ہوا ہے۔ ان کے بارے میں جو کچھ اس وقت تک معلومات ہیں وہ سب ہم آپ کو ان 2-3 ویڈیوز میں دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، دلچسپ تاریخی حقائق آپ خود بھی جانیں اور اس پر مزید تحقیق کریں، آپ ریسرچ کریں، آپ اس کی تحقیق کو مزید آگے بڑھائیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو اس قبرستان کا جو وزٹ کرا رہے ہیں، اس کی 4 دیواری سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان جو قلعے ہیں، ان قلعے والوں کے قبرستان ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں قلعے اور یہ قبرستان کا جو دروازہ ہے وہ جنوب سے کھلتا ہے، اور ان کے تقریباً ایک جیسے زمانہ لگتا ہے۔ اور کھت جو نام ہے، کھت، یہ بھی بلوچی نام مجھے نہیں لگتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ جو رائے دیں وہ رائے قابل احترام ہے، اور آپ کی تحقیق کے مطابق ہونے چاہیے کہ کھت جو لفظ ہے یہ کس زبان کی ہے اور کس زمانے کی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ قبروں کی بناوٹ، ان کی 4 دیواری اور قلعہ، اور یہاں مٹی کے برتن، اس کے علاوہ یہاں کوئی خاص چیز نہیں ملا۔ ایک بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں ایک برتن ایسا ملا تھا مٹی کا جو خالی تھا، اور اس پر ہندی میں کچھ الفاظ درج تھے۔ بہرحال وہ ابھی ہمیں دستیاب نہیں ہے۔ ہم کھت قبرستان پہنچے ہیں، یہاں ایک مسجد بھی بنا ہوا ہے، اور یہاں ایک پانی کا کنواں بھی ندی کے اندر بنایا گیا تھا، اور اب وہ نہیں ہے۔ وہ نمکین پانی تھا اس میں، میں نے خود اس میں پانی پیا تھا۔ یہ مسجد ہے، مقامی کسی مخیر حضرات نے بنایا ہے۔ یہ اس وقت کے قبرستان کا جنازہ گاہ بھی ہو سکتا ہے، اور مسجد بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آگے ہم آپ کو قدیمی قبرستان بھی دکھا رہے ہیں، اور ہم آپ کو قلعوں کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت تفصیل دے رہے ہیں، کیونکہ مکمل تفصیل کے مختلف ویڈیو بنتے ہیں۔ دونوں قلعوں کے ہم نے الگ الگ ویڈیو بھی بنائے ہیں جو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور تحقیق کر سکتے ہیں۔ براہ کرم آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے اس تحقیق کو آگے بڑھائیں، اور آپ اپنے جو معلومات ہیں، جو آپ کے پاس تحقیق ہے، اس سے بھی ہمیں
उसकी आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया। का इलाका ये आप देख रहे हैं, ये मकामी कब्रिस्तान है, कब्रें हैं। इसके साथ जो तारीख़ी कब्रें हैं, जो हमारी मंजिल है, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, उसके बारे में तहकीक चाहते हैं और आपको कुछ मालूमात हों तो इनको आप देख लें। इनकी चारों तरफ आपको मिलेगा एक इहाता मिलेगा, इसका दीवार मिलेगा। अब तो दीवार गिर गया है। अक्सर जो ये पुराने दौर के जो लोग थे, इनका जितने भी कब्रिस्तान हैं उनको इहाता गोल दायरे में बनाया हुआ है। उस वक्त के जो लोग थे जिनकी तारीख़ हमें मालूम नहीं है। यहाँ भी कुछ कब्रें हैं और 2 किले भी हैं। वो किलों के हमने अलग से वीडियो बनाए हैं और ये कब्रिस्तान भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत पुरानी कब्रें हैं जो इस आबादी से पहले की। यहाँ की आबादी जो इस वक्त की है ये आप देख रहे हैं ना जी। अच्छा, एक इसकी ख़ास बात ये है कि ये जनूब की तरफ इस इहाते का दरवाज़ा है। दोनों किलों का भी दरवाज़ा जनूब की तरफ है। तो मुझे लगता ये है कि ये जनूब की तरफ दीवार किले के दरवाज़े भी बनाते थे और अपने कब्रिस्तान का इहाता भी जनूब की तरफ। ये आप देख रहे हैं इहाता है और इहाते के अंदर आपको कब्रें नज़र आ रही हैं। इससे आगे सामने आपको एक नदी के पास ये जो सायादार ये चट्टान नज़र आ रहा है। यहाँ एक कुआं होता था, चश्मा, जिससे पानी निकालते थे और ये पानी इतना कुछ कड़वा भी था जिससे बड़ी मुश्किल से लोग पीते थे, बहरहाल गुजारा करते थे। अब हम आपको कदीमी कब्रिस्तान से गुजरी किले के पास लेके आए हैं। हमारे साथ रहे। गुजरी किला के पास हमारा एक दोस्त का हुजरा है, मेहमान खाना भी है। ये डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री के पास ये देख रहे हैं, ये मेहमान खाना है इनका। यहाँ आपको खाना मिलिए चाहिए। खोए सुलेमान के आप किसी भी हुजरे में जाते हैं तो आपको देसी मुर्गी, आपको मक्खन, आपको शहद, इस तरह लोग मिलेंगे। ये हम पहुँचे हैं इधर, खाने का टाइम नहीं है। ऐसी रोटियां देखो लेके आया है, ऐसे गोश्त, सालन, देसी मुर्गी। ये है हमारे मेहमान। आप जब भी आए ना कबाई इलाके में, ये आप इन दोस्तों को देख रहे हो, इनका यहाँ ओताक है, विसाख है, हुजरा है। ये सामने किला है, आप इस किला को भी देखो, आप इन भाइयों से मिल सकते हो। और ये हमारा दोस्त है, इसका नाम भी दोस्त मोहम्मद है। ऐसे अच्छे लोग हमें मिलते हैं। हाजी सिद्दीक साहब है जो हमें देसी घी और शहद खिलाते थे जब हम इसके घर जाते थे। ये सब दोस्त हैं। ये बलोची खाना और मोहब्बतें हैं। आपको सुलेमान जब भी आए आपको मोहब्बतें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बैठने का मज़ेदार जगह मिलेगा। ये रात को इतनी ठंडी हवा चलेगा, यहाँ गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। ये हम आपको कोट दिखा रहे हैं। इस कोट की तारीख को हम अभी खंगालेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। ये कोट गुजरी है, ये किला है। एक कोट गुजरी है जो मैदानी इलाके में है, ये पहाड़ में है। ये जो जहाँ तक हमें मालूमात हैं, ये खोसा सरदारों, खोसा कौम का जो है ना ये विरसा है। ये वो लोग यहाँ रहते थे। यहाँ उनके 2 किले होते थे। आमतौर बलोच कबाइल के 2 किले, एक मैदानी इलाके में होता था, दूसरा होता था पहाड़ के अंदर। उन्हें तो ज़्यादा ख़तरा महसूस होता तो पहाड़ के किले में आ जाते थे। पहाड़ के किले में तो किसी सूरत में कोई इन पर हमलावर नहीं हो सकता था। तो ये आप किला देख रहे हैं, इसके अंदर उस वक्त क्या बनावट थी, इसका क्या तरीक़ाकार था। अभी तो ये खाली पत्थर नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ। अच्छा, घर थे अंदर। ये देखें, ये भाई साहब बता रहे हैं, ये ऊंची जगह है, मिट्टी है, यहाँ घर थे, कमरे थे, ये सब कच्चे थे या इनमें पत्थर मिक्स करके गारे से बनाए गए थे। बहरहाल ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जगह ऐसे आपको नज़र आएंगे कि जो घरों की मानंद हैं, जो मकान बने हुए हैं, ये चीज़ें आपको नज़र आ रहे हैं। ये पुराने बर्तन, मिट्टी के बर्तन भी, ये उनके टुकड़े भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं,
ये किला है, ये किला कोट, इसको गुजरी बोलते हैं। ये डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री से ऊपर है। एक नीचे किला है असल गुजरी का, उसका तारीख भी हम आपको बताएंगे। जो दस्तयाब होगा वो सारा हम इकट्ठा करके आपको इसके बारे में, इन दोनों के कनेक्शन के बारे में, इनके दौर के बारे में मुकम्मल मालूमात जो इस वक्त तक दस्तयाब हैं वो सारे हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये किला है गुजरी का। ये सामने आपको सीमेंट फैक्ट्री के किला वगैरह नज़र आ रहे हैं, दूसरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ आप मकामी आबादी भी है, तो आप सीमेंट फैक्ट्री से आकर यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। बाइकर लोगों को, विज़िटर लोगों को मैं दावत देता हूँ कि यहाँ ज़रूर आएँ। आप वापस आराम से 2-3 किलोमीटर में सड़क है, मेन सड़क से आप पहुँच सकते हैं यहाँ तक। अपनी जो भी गाड़ी हो, हमारी कार है सुजुकी मेरान कार, हम उस पर पहुँचे हैं। तो चंद कदम पीछे गाड़ी खड़ी कर दी हमने। तो बहरहाल ये जो है ना, ये किला है और इसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये नीचे भी ये देखें, ये पहाड़ के अंदर से जो किला था गुजरी और कब्रिस्तान, वो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको मैदानी इलाके के किले को दिखा रहे हैं। असल में एक छोटा सा तारुफ है, इनके अलग से हमने वीडियो बनाए हैं। ये जो किला है इसके अंदर कुआं भी है, और ये दरियाफ्त शुरू में कैसे हुए, दोबारा कैसे तामीर हुए, अब किसके पास हैं, ये सारी कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये एक तारुफी वीडियो है, उसमें हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। इस किले का दरवाज़ा भी जनूब से खुलता है, ऊपर जो किला था उसका दरवाज़ा भी जनूब से खुलता था, और जो कब्रिस्तान का दीवार था उसका भी दरवाज़ा खुलता था जनूब से। तो इनका एक कनेक्शन तो ये बनता है। इसके अलावा जो किला यहाँ आबाद हुए, ये गेट भी हो सकता है। यहाँ मोर्चे हैं, ये चारों तरफ 4 मोर्चे हैं, और चारों मोर्चों के दरमियान में कुआं है। ये पहले हम रोई टीवी वालों के साथ आए थे, तो इस कुएं में पानी भी था। तो एक बार हम आपको ये कुआं भी दिखाते हैं। अभी हम ऊपर जो पहाड़ पे कोट गुजरी का किला था वो हम आपको दिखाया। ये देखें, दरमियान में मिट्टी इस तरीके से है कि इनका जो मकान बने हुए थे मलबा है खाली, और यहाँ अब आसार ऐसे नहीं है बुनियादों के। ये यहाँ कुआं था। 8-10 साल पहले, 15 साल पहले हम आए थे तो कुआं नज़र आता था सही तरीके से। बाहर नज़र तो अब भी आता है। इसमें ईंटें हैं, ये देख रहे हैं, ये आओ, ये किला है। ये आप टाइल भी देख रहे हो, ये किस किस्म के टाइल हैं। तो यहाँ वो जो कह रहा था लाल खान, वो कहता है दायरे में बकरियां यहाँ सोती, दरमियान में नहीं सोते, क्योंकि उनको उनकी आवाज़, धड़क की आवाज़, शायद इस किस्म की कोई वाइब्रेशन होता था, तो बकरियां नहीं सोते। यहाँ शैतीर लगे हुए थे। और किला को जो जिस कौम का था उन्होंने हिजरत करने के बाद इसको बंद कर दिया था, छुपा दिया था। तो बहरहाल इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। गुजरी किला इसलिए इसे कहते हैं कि गुज्जर कौम के लोग थे यहाँ पहले। फिर खोसा सरदार, और इसके चारों तरफ खोसा कौम बैठा है। खोसा कौम और उनके सरदार अरसद राज तक यहाँ बैठे रहे। तो फिर वो यहाँ से शिफ्ट हो गए बहादुरगढ़, और यहाँ चारों तरफ यारू खोसा हो गया, शाह सदरुद्दीन हो गया, कोट मुबारक हो गया जो बातिल था पहले। तो आगे कोट हैबत है, कोट हैबत का किला भी है। तो ये बलोचों के मस्कन थे। अब ये किला भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके ऊपर हमने गुजरी का दूसरा किला आपको दिखाया था जो पहाड़ के ऊपर था, तो वो भी और ये किला भी, इनका तसलसल एक है। इनके बारे में मज़ीद जो इंटरनेट पे मवाद मौजूद है वो भी मैं इकट्ठा करता हूँ, और जो किताबों में कोशिश करता हूँ उसके पर ऊपर सर्च करते हैं। ये मोर्चा है, ये आप मोर्चे देख रहे हैं, ये एक मोर्चा है, सामने दूसरा मोर्चा है, ये तीसरा है, और वो चौथा है, दरमियान में किला है। ये सामने डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री की सड़क है, और वहाँ से ये ट्रैफिक की आमद जारी है। इसको ऊपर तहकीक करके मैं दावत देता हूँ तारीख दानों को, मुहक्किकों को, जो इसके हकायक हैं वो
कोशिश करें कि वो निकालें। चैट जीपीटी पे इसका इस कोट गुजरी के किले का तस्वीर भी मौजूद है, कुछ तारीख भी मौजूद है, और कुछ आप गूगल से देख सकते हैं, कुछ किताबों से भी हासिल कर सकते हैं। कहते हैं, सुना गया है, मैंने इसकी हकीकी तारीखी मालूमात नहीं है, तारीख सबूत मांगता है। कहते हैं कि बलोच सरदार जब बैठे थे ना, खोसा सरदार बैठे थे, उनको ज़्यादातर मुज़ाहमत का सामना अब्बासी बहावलपुर के जो थे नवाब, उनसे इनका मुकाबला रहा है, कुछ जंगें हुई हैं। बहरहाल उनके बारे में मुझे तारीख़ हक़ाइक़ मालूम नहीं है, इनके बारे में तहकीक होना चाहिए, इस किले के बारे में मज़ीद तहकीक होना चाहिए। जो मुझसे हो सका मैं भी करूँगा। मैंने दोनों किले आपको दिखाए हैं, गुजरी के किला एक पहाड़ के अंदर है वो भी दिखाया है, इनका तसलसल है, मैं इनको इकट्ठे भी दिखाऊँगा, आपको अलग अलग करके भी दिखाऊँगा। और इनके बारे में जितनी रिसर्च, जितनी मवाद इंटरनेट पे मौजूद है, जो किताब मेरे इसमें आते हैं, तहकीक में जो आते हैं, जो हवाले हैं, उनकी भी मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँगा। सबसे ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यकीन भी इसके बारे में ज़रूर तहकीक करें और कमेंट में भी कुछ बताएं। ये भी देखें जी, ये मोर्चा है, ये चारों तरफ 4 मोर्चे हैं, किला गुजरी के 4 मोर्चे हैं, और दरमियान में कुआं है, और 5वां एक मोर्चा नुमा है गेट के पास। वो क्या है, वो भी जुनूब की तरफ उसका दरवाज़ा है, जो अंदर किला था पहाड़ के अंदर, उसका भी इसी तरफ जुनूब की तरफ दरवाज़ा था। ऐसा है ना सिद्दीक खान? और उसका दरवाज़ा भी ऐसे इधर ही था, जैसे एक मालिक ने बनाए हूँ, एक ही सोच में बने हूँ, है ना? हाँ, ये भी उसी तरीके से बना हुआ है। अच्छा, यहाँ दरमियान में पहले हम आए थे रोई टीवी वालों के साथ 10-15 साल पहले, तो हमें यहाँ बुनियादें कुछ कमरों की नज़र आती थी। अब मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं नज़र आता। बहरहाल ये कोट गुजरी है, कोट गुजरी का किला है, और जो कुछ हमसे इसके बारे में मालूमात हमें हासिल हुए, ये हम मगरबी सफ़ील के ऊपर से जा रहे हैं, तो यहाँ अभी मिट्टी के बर्तनों के अलावा, ये मिट्टी के दीवारों के अलावा, ये एक कोयला है, ये कोयला है, आप ये देख रहे हैं, फसीलों के दरमियान में आपको ये कोयला नज़र आ रहा है। ये आग जलाने का कोयला है, ये देख रहे हो, यहाँ आग जलाते थे ये मुख्तलिफ अदवार में, हालांकि ये ऊंची जगह है। यहाँ इस ऊंची जगह पर कैसे वो आग जलाते थे ये नहीं मालूम। ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये बर्तनों के, मिट्टी के बर्तनों के, और ईंटें, कुछ पक्की ईंटें हैं जो वहाँ लगी थी, जो टाइल नुमा ईंट कुएं में लगे हुए हैं, ये वैसे कुछ ईंटें आपको यहाँ भी नज़र आएंगी। ये आज के दौर के ईंटों से अलग बने हुए हैं। बहरहाल यहाँ हम तहकीक की दावत देते हैं आपको। ये ज़िला डेरा गाजी खान में डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री के पास है। हाँ, अच्छा, यहाँ कोई गीदड़ वगैरह भी उसने अपना घर मस्कन बनाया हुआ है, तो अभी यही लोग रहते हैं यहाँ। अभी आदमी जो है ना, दिन को तो आते हैं, रात को नहीं आते, डरते हैं, कहाँ कहते हैं कि यहाँ जिन्न हैं, भूत हैं, क्या है। बहरहाल सदीक भाई हमारे साथ हैं, उस किले में भी हमारे साथ थे, यहाँ भी हमारे साथ हैं। सलामत रहे। मज़ीद इसके ऊपर तहकीक की हम दावा देते हैं। ये किले के बाहर, गेट से बाहर भी मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ भी कुछ तामीरात थे। कैसे सिद्दीक खान? लग रहा है ऊंची जगह है, जहाँ मिट्टी का मलबा पड़ा हुआ है, तो यहाँ भी थे कुछ। हाँ, तो इस तरफ लोग बाहर रहते थे, और कोई जिरगे करते थे, कोई फैसले करते थे। बहरहाल ये बड़ी अच्छी जगह है, तो इसके बारे में मज़ीद मालूमात देंगे आपको। इन किलों के बारे में, इनके तारीख़ के बारे में जब हमने दरवेश कोह सुलेमान की खिदमत में हाज़िरी दी और उनसे मालूमात लिए, उनके मालूमात भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां तक मैं समझा हूं कि दरवेश कोह सुलेमान कह रहे हैं 4
100-450 साल से हम बलोच यहाँ आबाद हैं, मगर ये किले बहुत पुराने हैं। ये कभी पठानों के भी हो सकते हैं, कुछ गुज्जर नाम से ये गुज्जर लोग भी हो सकते हैं। तो बहरहाल उनकी ज़बानी भी आप ये मालूमात जो दे रहे हैं, राय हथुराम बहादुर के कोई हवाला दे रहे हैं, उनकी किसी किताब का भी हवाला दे रहे हैं। बहरहाल ये हमने आपको छोटा सा तारुफ इन किलों का पेश किया है। इनके लिए हम मज़ीद अलग अलग ये वीडियो बनाएंगे और उसमें कोट गुजरी और गुजरी जो पहाड़ में है उस किले के बारे में मज़ीद मुकम्मल मालूमात और डिटेल देंगे। आप हमारे साथ रहें, आप हमारे सारे वीडियो देखें, दरवेश कोह सुलेमान की बातें सुने। आपका बहुत शुक्रिया। जो मेरी राय है उसके मुताबिक यहाँ पे पहले पठान लोग थे, हम बलोच लोग आए हुए लोग हैं। बलोचों ने उनको बेदखल करके पुराने जैसे ट्राइबल वार होते थे, जंगें होती थी, तो गुजरी कलात, ये गुजर फैमिली का एक कलात माना कोट या कला, ये इस माना में। तो इसके दो हिस्से हैं, एक तो गुजरी कलात है यहाँ पहाड़ में, एक है मैदान में सर्कल एरिया में। हम इन ये दोनों देख कर आए हैं अभी, इनकी तस्वीरें भी हमने ये साथ आपके इस प्रोग्राम में आपकी गुफ्तगू के साथ उनकी तस्वीरें भी लोग, ऊपर वाला जो कोट गुजरी है वो भी हम देख कर आए हैं। ये राय बहादुर हथुराम के बकौल के ये तकरीबन 419 साल पहले थे, यानी तकरीबन 425 साल। ये बहुत बड़ा अरसा है। 425 साल पहले हमारी जो फैमिली, हमारी कौमियत, उन्होंने स्ट्रगल किया है इस इलाके में जीने के लिए। क्योंकि बलोच वैसे तो पहाड़ का रहने वाला है, पानी और ज़िंदगी की आसाइशें उसे यहाँ तक ले आई। जैसे आप यहाँ से अपनी ज़िंदगी की आसाइशें हासिल करने के लिए इस्लामाबाद सेटल हो गए, उस अल्लामा इकबाल जैसे फरमाते हैं, हर मुल्क मास्त के मिल के खुदा मास्त, कि ये सारी ज़मीन हमारा अपना मुल्क है, जहाँ तक अल्लाह ताला की खुदाई है वहाँ तक हमारा